Hi viewer, it's me Manishu, and in today's video we are going to do consolidated financial statement from the BPP kit of F3. So before starting the video, म आफ्नो नेपाली भ्युअरहरूलाई आज संविधान दिवसको शुभकामना दिन चाहन्छु. सो किनकि मोस्ट अफ द माई भ्युअर आर फ्रम द नेपाल, सो फॉर देम द पर्पज ऑफ मेकिंग द वीडियो कि मैं उन लोग को ये आज संविधान दिवस है उनको शुभकामना दे पाऊँ, उसलिए मैं ये बना रही हूँ. सो आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीपीपी किट से. जो भी बाकी क्वेश्चन है इसके वो इस वीडियो में हम लोग आज कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Question number 26.1. What amount should appear in the group consolidated financial statement of what amount should appear in the group consolidated statement of financial position at 31st December 20x2 for goodwill. तो बेसिकली ये गुडविल कैलकुलेशन की पूछ रही है. ओके, सो गुडविल कैलकुलेशन के लिए हम लोग को कंसोलिडेटेड प्रिपेयर करने से पहले वी नीड टू डू 5 वर्किंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ईच एंड एवरी क्वेश्चन. सो बिफोर we prepare a consolidated financial statement or financial position, we need to do a 5 work. In the first is we need to establish a group structure. In group structure we just figure out who is the parent company and who is the subsidiary and how much percentage is owned by the parent and date of acquisition, time of acquisition and the year in. These things we need to be note down in the working one. Okay, in second working what we used to do is we just calculate net asset at a time of acquisition of subsidiary. Okay, in third working we used to calculate the goodwill. In fourth working we used to calculate a non-controlling interest amount, and in fourth working we used to calculate a group return earning. Okay, so let's start step by step. Okay, okay, so working one. In working one we used to figure out who is the parent and who is the subsidiary. So let's read out the question. The question is, on 1st January 20x0 Alpha company purchased 90,000 ordinary $1 shares in Beta Co. So Alpha acquired let's write the 90,000 shares, okay, of Beta. Okay, it means Alpha is parent company and Beta is a subsidiary company. Okay, so for 270,000 it means TPC equal to 270,000. Okay, and here date of acquisition acquisition equal to 1 Jan 20x0. Okay, उसके बाद at a date Beta company retained earning amount to 90,000. Okay, retained earning का amount दिया हुआ है 90,000. Okay, and the fair value of Beta company assets at acquisition equal to their book value. 3 years later, on 31st December 20x2. Okay, the statement of financial position of the two company were given. Okay, it means जो हम लोग को डेट ऑफ एक्विजिशन रिपोर्टिंग डेट जो दिया हुआ है, रिपोर्टिंग डेट भी यहाँ लिखेंगे हम लोग. ठीक है, सो रिपोर्टिंग डेट. ओके, रिपोर्टिंग डेट है हमारा 31st दिसंबर 20x2. ओके, ओके, मतलब टाइम ऑफ एक्विजिशन हो गया 3 साल. ठीक है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, फिर भी लिख देती हूँ, नो इश्यू. सो टाइम ऑफ acquisition, I will write in shortcut 3 years. Okay, okay, so now let's move to the working 2. In working 2, what I told, we will just calculate net asset at the acquisition and reporting date of the subsidiary. Okay, so
net assets at acquisition and at reporting date. ठीक है, अब मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, बिकॉज टू कैलकुलेट ए गुडविल आपको नेट एसेट एट एक्विजिशन की फिगर चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा कि फर्स्ट से ऐसे वर्किंग 1 वर्किंग 2 करके करूंगी तो इट विल क्वाइट इजी, और आप लोग को भी सजेस्ट करूंगी कि इस क्वेश्चन में जस्ट ट्राई टू अगर पॉसिबल है तो वर्किंग 1 वर्किंग 2 5 वर्किंग करें, सो दैट कि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए क्वेश्चन बनाते वक्त, और आपको लाइक बार बार बुक ना पलटना पड़े कि हाँ ये चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू, जस्ट गो थ्रू द ऑल वर्किंग, आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये नेट एसेट एट एक्विजिशन एंड रिपोर्टिंग डेट हो गया। So first we will write down share capital. I will write in shortcut, okay? Share capital at हमको रिपोर्टिंग डेट का दिया हुआ है बीटा कंपनी का, ठीक है, ये सब्सिडरी का है, ठीक है, ये सब्सिडरी का है, ये भूलना मत, पेरेंट का मत डाल देना। तो शेयर कैपिटल आपको यहाँ पे देखो फिगर दिया है, ऑर्डिनरी शेयर $1 मतलब ये नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू आप इसको कह सकते हो। अब हम लोग को बीटा का देखना है, दैट इज 100,000 इसका अमाउंट है, तो इसका यहाँ पे हम लोग 100,000 अमाउंट रखेंगे, हाँ एज्यूम करेंगे कि इसको भी एक्विजिशन डेट पे ये सेम है, ओके। नेक्स्ट वी विल राइट ऑन शेयर प्रीमियम, बट हम लोग को क्वेश्चन में शेयर प्रीमियम का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो लीव इट। उसके बाद रिटेन अर्निंग, ठीक है, रिटेन अर्निंग रिपोर्टिंग डेट का क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 160,000, ओके 160,000, ओके राइट। एंड हम लोग को एट एक्विजिशन डेट का ऊपर ही बोल दिया था, एट दैट डेट मींस एक्विजिशन डेट पे बीटा कंपनी का रिटेन अर्निंग अमाउंट टू 90,000, ओके ओके, सो टोटल अमाउंट इज नाउ, और कुछ तो नहीं रह गया ना, नहीं रहा, ओके फाइन, ये हमारा हो गया। अभी पर वगैरह इसमें से रिड्यूस करते हैं, वो कुछ दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, सो लीव इट, ये हो गया। नाउ अब हम लोग करेंगे वर्किंग 3 एंड दैट इज फॉर द गुडविल, ओके। So goodwill calculation के लिए first we need to find out कि fair value paid by the parent, fair value consideration for that is paid by the parent. So FV paid मैं डायरेक्ट लिखती हूँ by parents to acquire करने के लिए कितना पे किया है, ऊपर में TPC में लिखा था, that is 270,000, okay। and उसके बाद FV of NCI का, ये भी हम लोग क्वेश्चन में गिवन है, आई थिंक प्रायर के क्वेश्चन में कोई गिवन ही होगा, जब F7 पढ़ोगे तब आपको ये कैलकुलेट करना पड़ता है, कभी कभी क्वेश्चन में भी दिया होता है, तो अभी तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 42,000, ओके ओके। उसके बाद लेस करेंगे हम लोग यहाँ से नेट एसेट एट एक्विजिशन, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ये हमारा कितना अमाउंट था 190,000। अब ये जो डिफरेंस आएगा, अब देखोगे ना नेट एसेट आप टोटल करोगे तो यू विल गेट द, आप मतलब 190,000 हमारा नेट एसेट, पर हम लोगों ने पे तो बहुत ज्यादा किया है, वो डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग गुडविल, ठीक है। तो ये हमारा गुडविल ये हो गया 122,000, ऑप्शन में है, सी में है, सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ओके। Okay, so let's move to the question 26.2. What amount should appear in the group consolidated statement of financial position at 31st December 20x2 for the non-controlling interest? So now अब working 5 पे आएंगे हम लोग, ठीक है। So working 5, sorry 4, I mean 4 हमारा कैसे के लिए था, I told you earlier, ये एनसीआई कैलकुलेशन के लिए होती है। एनसीआई कैलकुलेशन के लिए जस्ट हम लोग यही अमाउंट पुट डाउन करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई दैट इज द अमाउंट गिवन एज पर द क्वेश्चन 42,000। अब यहाँ पे ना ऊपर जाओ और यहाँ से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पे आप एक कॉलम बना के लिख दो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, ओके। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व मीन्स ये दोनों का डिफरेंस, रिपोर्टिंग डेट का नेट एसेट एंड एक्विजिशन का कितना है 70,000। अब इसको अपोर्शन करो पेरेंट्स एंड एनसीआई में, तो एनसीआई का परसेंटेज कितना है पता नहीं है आपको, तो हम लोग पहले परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए पेरेंट ने कितना ओन किया है, पेरेंट ने ओन किया है 90,000 शेयर, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू कैन गो थ्रू इट, देखो यहाँ पे 90,000 शेयर, ओके।
एंड उसके बाद सब्सिडरी का टोटल नंबर ऑफ शेयर, अब वो कैसे पता चलेगा? थ्रू द बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज गिवन इन द प्रोवाइडेड यू इन द क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे शेयर कैपिटल दिया हुआ है ऑर्डिनरी शेयर, अब नॉमिनल वैल्यू 1 है तो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ शेयर? अब डिवाइड करोगे वो 100,000 को डिवाइड बाय 1, तो इट मींस 100,000 आपका शेयर है, टोटल नंबर ऑफ शेयर सब्सिडरी का, ठीक है। अब इसको करेंगे इंटू 100, 90% आया, इट मीन्स 10% किसका है? एनसीआई का है। तो ये जो 90% है इसका 70,000 का 90% आप लो, ठीक है, तो कितना आएगा? 63,000, और एनसीआई का 10% लो आप, ये आपका हो जाएगा 7,000। तो यही अमाउंट हम लोग उठा के यहाँ रखना है यहाँ पे, और इसको सॉरी ओके, तो यहाँ डालेंगे 10 पर एनसीआई परसेंटेज, एनसीआई परसेंटेज में ब्रैकेट में लिख देते 10%, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, ओके। तो ये डायरेक्ट हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, नो इश्यू, 7,000, ठीक है। सो टोटल, और जब एफ आर पढ़ोगे तो यहाँ पे और भी चीज माइनस करते हैं, बट एफ के लिए इतना ही रिक्वायरमेंट है, तो उसके अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। 49,000, ओके। तो ये हमारा 49,000 हो गया एनसीआई का वैल्यू, तो देखते हैं 49,000, ओके, सो करेक्ट है आपका आंसर, ओके। तो अब क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द फिगर ऑफ रिटेन अर्निंग बी इन द ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 December 2022, ओके। सो इट मींस वर्किंग 5 द क्वेश्चन इज आस्किंग, वर्किंग 5, इसमें क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, ग्रुप रिटेन अर्निंग वी यूज टू कैलकुलेट, उसके लिए क्या करेंगे, रिटेन अर्निंग लेंगे, बट किसका? पेरेंट का, ठीक है, पेरेंट का लेंगे। पेरेंट का हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 210123, ओके। इसके बाद ऐड करेंगे पेरेंट परसेंटेज ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, ओके। तो जो ऊपर हम लोग ने कैलकुलेट किया यहाँ पे जो बोला था 90%, या दिस वन, ओके। अब तो पर की बात नहीं है, अगर पर पेरेंट और सब्सिडरी को सोल्ड कर रहा होता है, इन दैट केस वी यूज टू कैलकुलेट पर्प, और उस केस में हम लोग पर्प यहाँ से डिडक्ट करते वर्किंग 5 से। द क्वेश्चन हैज नॉटिंग गिवन इन्फॉर्मेशन लाइक दिस कि पर्प पे सेल हुआ है कुछ भी, तो हम लोग इतना पे ही हम अपना कैलकुलेशन करते हैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। तो 273,000 is your answer, okay? Yeah, okay. So next question is what? Which of the following company are subsidiaries of Gamma Co? Okay. जिटा को गामा को का सब्सिडी कौन है? इट मीन्स गामा को पेरेंट्स है। तो जिटा को गामा को ऑन 51% ऑफ नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ जिटा कंपनी, okay, so where was we? Gamma company owns 51% of non-voting preference shares of Jetaco, ओके। 51% नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर ओन कर रही है, तो आपको पेरेंट सब्सिडरी रिलेशन के लिए 50 अबव शेयर ओन करना पड़ेगा, बट दैट शुड बी वोटिंग वन, ओके। ये नॉन वोटिंग है, और प्रेफरेंस से भी नहीं, इक्विटी वाला, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं आएगा ऑप्शन में। तो IOTA company, Gamma company has a 3 representative on the BOD of IOTA company. Each director can cast 10 votes each out of total vote of 40 vote at the 40 वोट एट बीओडी। मतलब एक गामा कंपनी जो है उसका 3 रिप्रेजेंटेटिव है बीओडी में, और एक डायरेक्टर 10 वोट कास्ट कर रहा है आउट ऑफ 40, इट मींस 3 डायरेक्टर 30 वोट्स कास्ट करेगा, है ना। तो 30 वोट्स कास्ट करेगा, इट मींस मोर देन 50% वोटिंग राइट किसके कंट्रोल में है?
गामा कंपनी का, so it means here subsidiary and parent relation has been established between the IOTA and gamma company. ठीक है, क्योंकि मोर वोटिंग राइट किसके पास है, गामा कंपनी के पास, क्योंकि उसके पास 3 रिप्रेजेंटेटिव है बीओडी में, वो जैसे चाहेगा वैसे डिसीजन को वो चेंज करेगा, कंट्रोल करेगा बिजनेस को. इट मीन्स आयोटा कंपनी इज a subsidiary of the gamma company. And third one, Gabaco owns 75% of ordinary share capital of Capaco, and however Kappa company is located overseas and subject to tax in that country. So no matter वो कहाँ पे located क्या है, but वो उसने 30 कितना परसेंट ऑन किया है, 75%. इट मीन्स ये भी हमारा पेरेंट सब्सिडी का रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है. ओके, तो ये मैटर नहीं करता है कहाँ लोकेटेड है कहाँ, बट Kappa company owns like more than 50% share in the Gamma company owns more than 50% share in the Kappa co, so there is a parent and subsidiary relation between them. Okay, so it means Ioda company and Kappa company both are the subsidiary of the Gamma co. That means option C, 26.4 C. Okay, okay. So next question, what figure for the goodwill on consolidation should appear in the consolidated statement of financial position of Hilton Group at 31st December 2023? अगेन हम लोग यही 5 वर्किंग के थ्रू जाते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं कौन किसको एक्वायर कर रहा है. तो इन वर्किंग वन वी यूज्ड टू, ये क्या चीज के लिए, ग्रुप स्ट्रक्चर के लिए. मैं यहाँ लिख देती हूँ ग्रुप स्ट्रक्चर. ओके, तो कौन किसको ऑन कर रहा है, हिल्टन कंपनी. इसको हटा के लिखती हूँ, हिल्टन किसको ऑन कर रहा है, कितना परसेंट, 80% है ना, 80% ऑन किसको, शिव को, है ना, SHREW. ओके, अब कब, ऑन 1 जनवरी 2003 को. ओके, अब कितना के लिए टीपीसी भी दिया हुआ है, दैट इज द 280,000. ऑलमोस्ट सिमिलर डिसीजन है, आई मीन इंफॉर्मेशन है. एंड उसके बाद हम लोग को 31 दिसंबर 2003 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है. तो टाइम ऑफ एक्विजिशन कितना हो जाएगा, 1 ईयर. तो मिड ईयर एक्विजिशन का झंझट खत्म, 1 ईयर. और क्या बच गया, और कुछ नहीं. अब लेट्स मूव टू द स्टेप 2, दैट इज द वर्किंग टू नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी. सब्सिडरी का नेट एसेट में हम लोग वही एट एक्विजिशन एट रिपोर्टिंग डेट देखेंगे, और दोनों का जो टोटली आएगा उसका डिफरेंस को पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कहते हैं. Okay, so now share capital. What is the share capital of the Shree company? It's 140,000. So हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 140,000. ओके, और ये भी एज्यूम करेंगे एट एक्विजिशन द शेयर कैपिटल इज द सेम. अब हम लोग के पास यहाँ पे शेयर प्रीमियम भी है, ठीक है नहीं, यहाँ पे शेयर प्रीमियम है, तो यहाँ पे डालेंगे शेयर प्रीमियम. शेयर प्रीमियम कितना है रिपोर्टिंग डेट पे आपका, 50,000. सो वी एज्यूम कि ये जब शेयर कैपिटल सेम है तो ये भी सेम होगा एट एक्विजिशन. एंड आपका रिटेन अर्निंग रिपोर्टिंग डेट पे क्या है, ओके, तो आपको एज एट 1 जनवरी 2003 का रिटेन अर्निंग दिया हुआ है, वो है 60,000. ठीक है, और आपको प्रॉफिट दिया हुआ है पूरे साल का. इट मीन्स ऐड करना पड़ेगा 60,000 प्लस 40,000. ओके, ठीक है, उसके बाद अब कुछ नहीं है. तो लेट्स, और क्या बोला हुआ है, देयर हैव नो चेंजेस इन द स्टेट ऑफ शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट ऑफ आइदर कंपनी सिंस 1 जनवरी 2003 एंड द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई इन प्लेस ऑन एक्विजिशन वाज 65,000. ओके, अब इसको टोटल करते हैं. यहाँ पे शेयर प्रीमियम ऐड हुआ है, तो ये भी इसको भी ऐड करना पड़ेगा. ये देखो हो गया, ये इसको खत्म, एंड इसको भी शेयर प्रीमियम का अमाउंट ऐड करते हैं. ये रहा डन. सो हमारा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व भी आ गया 40,000. ओके, सो नाउ पेरेंट कितना ऑन कर रहा है, 80%. ठीक है, यहाँ पे 80% डाल देंगे इसको, 80.
अभी यहाँ पे डालेंगे 20। ठीक है, अब वर्किंग 3 पे जाते हैं हम। ये इसको टोटल कहते हैं, टोटल। ठीक है, और प्लीज जहाँ भी कंफ्यूजन है डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, उसके बाद वॉकिंग थ्री पे हम लोग देखेंगे। वॉकिंग थ्री किसके लिए होता है? इट्स फॉर द गुडविल। गुडविल कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे? एफ बी पेड बाय पेरेंट्स, व्हाट इज द अमाउंट? इट इज 280,000। अब ये पहले वाले क्वेश्चन पे ही था। ओके, एनसीआई का भी क्वेश्चन में गिवन है 65,000। ओके, एंड 250,000 ऊपर से हम लोग ने लिया, सो 95,000 इज आवर गुडविल। तो हमारा आंसर में क्या दिया हुआ है? 26.5 का सी। ओके, इट मीन्स 90,000 वी आर करेक्ट। Okay, what is the figure of non-controlling interest should appear in the consolidated statement of financial position of Hilton Group at 31st December 20x3? Okay, it means question is asking the working for। ठीक है, working for के लिए वही होगा। अभी तो 20% है, 20% कर देते हैं। एक काम करना, ऊपर में ना ये जैसे हम लोग ने पेरेंट का परसेंटेज लिखा है ना, यहाँ पे साइड में ये भी लिख देना एनसीआई का परसेंटेज दैट इज 20%। ठीक है, ओके। तो ये 65,000 क्वेश्चन में गिवन है, 8,000 हम लोग ने यहाँ से लिया। इसके बगल वाला वैल्यू 8,000, यस। ठीक है, उसके बाद ये 20% करना भूल गई मैं, एक मिनट। हाँ, इट्स भी 20%। ओके, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 73,000 एनसीआई का अमाउंट, ऑप्शन सी। ओके, 26.6 का सी। ओके ओके, सो 26.7 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द टाइगर कंपनी? ओके, ये क्वेश्चन से लिंक नहीं है, सो लेट इट बी। ओके, ये हम लोग ने निकाला नहीं है, इसको आप चाहो निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको सब चीज क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। यहाँ पे हम लोग ने पेरेंट का रिटर्न अर्निंग कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया होगा आपको कितना है रिटेन अर्निंग, वही सेम ऐड करना पड़ेगा आपको 140,000 और 80,000, क्योंकि 140,000 आपका ये एक्विजिशन रेट का है, हम लोग को चाहिए रिपोर्टिंग रेट का। तो पूरा साल का प्रॉफिट दिया हुआ ऐड करने पे एट द रिपोर्टिंग रेट का रिटेन अर्निंग हो जाएगा। दोनों को ऐड करके बस यहाँ पे अमाउंट डाल दो, जैसे कि इतना है 140,000 प्लस 80,000, तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द टाइगर कंपनी? ओके, इसमें भी वही हम लोग वर्किंग के थ्रू जाएंगे, बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना क्वेश्चन आपको। ओके, तो इसमें क्या करते हैं? ग्रुप स्ट्रक्चर बनाएंगे, कौन किसको एक्वायर कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। द फैंटा कंपनी एक्वायर्ड द 100% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर ऑफ टाइगर कंपनी ऑन 1 October 20x7। ओके, तो आपका मैं शॉर्टकट लिखती हूँ, एफ लिखती हूँ, एफ स्टैंड फॉर फैंटा। एंड दूसरा आपका ये 8 कितना परसेंट ऑन कर रहा है? 100% किसका? टाइगर कंपनी का, सो आई विल राइट डाउन टी। ओके, टी। अब कब अक्वायर कर रहा है? ऑन आपका 1 October 20x7 में। ठीक है, हमारा ईयर इंड क्या दिया हुआ है? ईयर इंड हमारा दिया हुआ है आपका 31st December 20x7। So it has been how many months? टाइम ऑफ एक्विजिशन कितना हो जाएगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इट मीन 3 मंथ। मिड ईयर एक्विजिशन का केस आ गया। ओके, अब इसमें तो एनसीआई नहीं होगा क्योंकि 100% शेयर ऑन किया हुआ है उसका। ठीक है, सब्सिडरी का, सो देयर विल बी नो एनसीआई इन दिस केस। उसके बाद हम लोग को अब टीपीसी देखना है। टीपीसी मीन्स टोटल परचेज कंसिडरेशन, हाउ मच पेरेंट पे टू एक्वायर द शेयर ऑफ द सब्सिडरी। ओके, सो अब हम लोग को क्या बोला हुआ है? ओके, शेयर कैपिटल रिटर्न अर्निंग दिया हुआ है क्वेश्चन में। और गुडविल भी दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, ओके, सो टीपीसी हम लोग को कैलकुलेट करना है। ऑन 31st December 20x7 द शेयर कैपिटल एंड रिटर्न अर्निंग ऑफ द टाइगर कंपनी वर एज फॉलोज। ऑर्डिनरी शेयर्स $1 is 400, रिटर्न अर्निंग एट 1st January 20x7। ठीक है,
तो 1 जनवरी 20x7 का रिटर्न अर्निंग दिया हुआ है और वो रिटर्न प्रॉफिट फॉर द ईयर, रिटर्न प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट फॉर द होल ईयर दिया हुआ है, ठीक है। इट मीन आपको एट द स्टार्ट ऑफ द ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है रिटर्न अर्निंग का एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है, बट यू एक्वायर्ड ऑन द 1 अक्टूबर 20x7, है कि नहीं। तो मिड ईयर में एक्विजिशन है तो पूरा साल का हम लोग प्रॉफिट तो कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम लोग को एट द डेट ऑफ एक्विजिशन का रिटर्न अर्निंग फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड एट द रिपोर्टिंग डेट का। ओके ओके, तो टीपीसी कैलकुलेट करना है, इसको यहीं पे छोड़ते हैं अभी फिलहाल, कितना हम लोगों ने पे किया है। तो वर्किंग टू पे जाते हैं सीधे। वर्किंग टू, वर्किंग टू में क्या करेंगे हम लोग, मैंने क्या बताया था, वी यूज टू कैलकुलेट ए नेट एसेट ऑफ द सब्सिडरी, है ना। नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी क्या लेंगे, एट एक्विजिशन, एट रिपोर्टिंग डेट, और इधर पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल, फिर भी लिख लेते हैं। ओके क्या दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। टाइगर कंपनी का कितना शेयर कैपिटल रिपोर्टिंग डेट पे, रिपोर्टिंग डेट हमारा क्या है 31 दिसंबर 20x7, सो शेयर कैपिटल इज 400, 1 2 3 30 कॉमन लिया हुआ है। आई विल एज्यूम कि ये सेम है एज द एक्विजिशन डेट। उसके बाद रिटेन अर्निंग दिया हुआ, ठीक है। सो रिटेन अर्निंग कैलकुलेशन के लिए हम लोग को 1 जनवरी 20x7 का दिया है एंड वी एक्वायर्ड ऑन द 1 अक्टूबर 20x7, मतलब कितने महीने के बाद एक्वायर किया है, 9 महीने बाद। इट मीन्स अगर हम लोग जो प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है उसमें का 9 महीने का प्रॉफिट उठा के हम लोग रिटेन अर्निंग, ओपनिंग रिटेन अर्निंग के बैलेंस में ऐड कर दे, सो वी विल गेट द रिटेन अर्निंग एट द टाइम ऑफ द एक्विजिशन, है ना। तो कितना है हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग 100,000, ठीक है। इसमें प्लस करेंगे आपका 9/12 कर देंगे, ठीक है, इनटू कितना है प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000, ठीक है। ये करने के बाद हमारा एट द एक्विजिशन डेट का आया, और रिपोर्टिंग डेट के लिए सिंपली अब ऐड कर दो 100,000 प्लस 80,000। सो लेट्स डू द टोटल करेंगे तो ये प्लस ये एंड इधर ये प्लस ये, एंड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में दिस माइनस दिस, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द वर्किंग 3, किसके लिए होता है, फॉर द गुडविल। गुडविल के लिए क्या करते हैं हम लोग, एफ बी पेड बाय पेरेंट्स, जो कि पता नहीं है, वी नीड टू कैलकुलेट, क्वेश्चन यही बोल रहा है, एंड एफ बी पेड बाय एनसीआई, तो यहाँ पे तो 100% पेरेंट्स ने एक्वायर किया, तो एनसीआई का बात आएगा, नो। तो लेस करेंगे डायरेक्टली नेट एसेट एट एक्विजिशन, ओके। सो क्या है हमारा नेट एसेट एक्विजिशन 560,000, ठीक है। और हम लोग को क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट ही दिया हुआ है, कितना अमाउंट है गुडविल का 30,000, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सपोज मानो एक्स मान लेते हैं, एक्स, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल बोलो टीपीसी मीन्स व्हाट अमाउंट पेड बाय पेरेंट्स टू एक्वायर द सब्सिडरी। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 560,000 प्लस 30,000, ये है ना। इट मीन्स कितना 590 है क्या आंसर, 526.7 ds 590,000, ठीक है। ओके, सो 8 26.8 Evergreen Company own 35% of the ordinary share of DCDS. What is the correct accounting treatment of revenue and cost of the DCDS for reporting period in the consolidated statement of profit or loss of the Evergreen Group? Okay, एक सेकेंड, ओके। तो सबसे पहले ग्रुप स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसमें क्या आएगा आपका, एवरग्रीन कंपनी ओनली 35% शेयर ऑन करिए डेसिडियस का। इफ देयर इज एनी पेरेंट एंड सब्सिडियरी रिलेशन बिटवीन देम, नो।
क्योंकि वो लेस देन 50% ऑन कर रही है और कुछ कंट्रोल वगैरह की बात नहीं की है। अगर कंट्रोल वगैरह की बात करें तो हम लोग डिसाइड करते हैं अच्छा ये लेस देन 50% ऑन की है, बट कंट्रोल कैसे करिए वो भी देखना पड़ेगा, है ना, कि उस सब्सिडरी और पेरेंट रिलेशन डिफाइन करने के लिए। तो हियर अब सिंपली बोला 35% ऑन कर रही है, तो इट मीन्स ये आपका लेस देन 50% शेयर जब ऑन करेगा इसको क्या कहते हैं, एसोसिएट, है कि नहीं। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, हम लोग इक्विटी बेसिस पे देखते हैं। इक्विटी बेसिस के बेस देखने के लिए हम लोग इक्विटी बेसिस मेथड यूज करने के लिए देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन सब्सिडरी टू पेरेंट सो दैट कि पेरेंट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रिपेयर करे, ये तो होना ही पड़ा, ठीक है। तो ओके, अब देखते हैं क्या क्या ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग। Revenue and cost of the deciduous are added to the revenue and cost of evergreen on line by line basis। हम लोग लाइन बाय लाइन बेसिस किस में ऐड करते हैं जब पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशन है उस केस में हम लोग लाइन बाय लाइन ऐड करते हैं। यहाँ तो पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशन नहीं है, एसोसिएट का रिलेशन है, तो ऑप्शन ए इज योर रॉन्ग आंसर। बी 35% of the profit after tax of deciduous should be added to the evergreen consolidated profit before tax। ऑब्वियस हम लोग यही करते हैं, प्रॉफिट जो हमारा आफ्टर टैक्स आता है और जितना परसेंट हम लोग ने होल्ड किया हुआ है एसोसिएट्स का उतना लेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और उसको जाके हम लोग ऐड कर देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स किसका, एवरग्रीन के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ओके, ठीक है। अगर 35% रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ डेसिडीज आर एडेड टू द रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ एवरग्रीन ऑन लाइन बाय लाइन बेसिस, आप इफ पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशन है ओनली हम लोग लाइन बाय लाइन बेसिस ऐड कर सकते हैं और नो मैटर कितना परसेंट ऑन किया है, पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशन ही है, मान लो 60% ऑन किया कि 70, हम लोग 60-70% रेवेन्यू और कॉस्ट आइटम नहीं लेंगे क्योंकि पेरेंट सब्सिडरी मोर देन 50% ऑन करिए और कंट्रोल लेकिन 100% पे है, ये चीज ध्यान देना है। भले ही वो 60%, 70%, 80% शेयर ऑन कर रही है सब्सिडरी का पेरेंट ने, बट कंट्रोल तो 100% पे है। वो जब चाहे वो बीओडी को रिमूव कर सकता है, जब चाहे अपने लाइक डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, आई मीन इम्पैक्ट पा सकता है। तो इसीलिए ये वाला भी रॉन्ग है। The revenue and cost of residues are added to revenue and cost of evergreen company on line by line basis. Then 65% of profit after tax is deducted so that the only evergreen company share remains in the consolidated financial। ये obvious रंग है, ऊपर का मिक्सअप करके ये ऑप्शन बना दिया है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन बी जो राइट आंसर। लेट्स चेक आउट 26.8। oh yes, okay, okay, 9 number। During the year in 31st March 20X9, Benzo company has sold goods to Mercedes company for 50,000। Mercedes company still had this good in the inventory at the year end। Benz company used 25% markup on the all goods। Okay, what is the consolidated return earning of Mercedes Group at 31st March 20X9? Okay, ये ग्रुप रिटर्न अर्निंग कैलकुलेट करना है। लेकिन हम लोग लाइन बाय लाइन जाते हैं, ठीक है, इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं डायरेक्टली भी कर देती हूँ आपको पता चल जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग मर्सिडीज कंपनी को ऑन हैज ऑन 100% ऑफ बेंच कंपनी, मतलब मर्सिडीज कंपनी 100% बेंच कंपनी को ऑन कर रहा है। इट मींस मर्सिडीज पेरेंट एंड बेंच कंपनी सब्सिडरी और 100% जबकि ऑन कर रहा है, सो देयर वुड बी नो एनसीआई, है ना, यहाँ तक ठीक है। और अब यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं दिया हुआ, ठीक है, सिंस इनकॉर्पोरेशन बोल रहा है, इट मींस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डेट ऑन किया हुआ है, इमीडिएट एक्विजिशन भी नहीं है। तो हम लोग का ईयर एंड का फिगर आउट दिया हुआ है, शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग ठीक है। तो ग्रुप रिटेन अर्निंग के लिए हम लोग पहले क्या लेंगे, पेरेंट का रिटेन अर्निंग। पेरेंट कौन है, मर्सिडीज, मर्सिडीज का रिटेन अर्निंग क्या है 45,123। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व भी इसमें ऐड करते हैं ना, इसलिए मैंने बोला कि जस्ट गो थ्रू द स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स गो थ्रू द स्टेप बाय स्टेप सो इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू। ओके, सो वर्किंग 1 पे जाते हैं पहले। जब आप यूज टू हो जाओगे ना तो खुद आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर पाओगे, ऐसे मतलब लाइक
स्टेप वाइज वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। लाइक जब एफ आर करोगे तब आपको डिटेल दिखाना पड़ेगा एक्सेल में करके, बट एफ ए और वो तो ऑप्शन बेस्ड रहता है, जस्ट यू नीड टू चूज द आंसर। उसके लिए बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, सो दैट कि आप इजी कैलकुलेट कर पाओ। सो लेट्स फर्स्ट एस्टैब्लिश ग्रुप स्ट्रक्चर। फर्स्ट क्या है, एम मतलब मर्सिडीज ऑन 100% ऑफ किसका, बेंच बी। ठीक है, अब ऑन तक का डेट सिंस इनकॉर्पोरेशन बोल रहा है नो मैटर, और ईयर एंड भी 31 मार्च 20x9 मतलब मेनी टाइम हो गया, टाइम ऑफ एक्विजिशन, ये चीज हम लोग नहीं देखेंगे। टीपीसी देखेंगे, टीपीसी क्या है हमारा, टीपीसी भी कुछ ऐसा बोला हुआ नहीं है, सो लेट इट बी। इतना स्टैब्लिश करने के बाद हम लोग वर्किंग टू पे जाते हैं। वर्किंग टू पे हम लोग क्या करते हैं, नेट एसेट किसका, सब्सिडरी का, है ना। सो नेट एसेट शॉर्टकट लिखती हूँ ऑफ सब्सिडरी सब at acquisition and at reporting date RD। ओके, सो हमारा फर्स्ट में शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिपोर्टिंग डेट का कितना है बेंच कंपनी का 50,000, सो वी विल अज्यूम कि सेम है ये आपका इस डेट पे भी। फिर रिटेन अर्निंग 120,000 दिया हुआ है रिपोर्टिंग डेट का, और एक्विजिशन डेट का भी दिया ही होगा। ओके, यहाँ पे एक्विजिशन डेट आपका इनकॉर्पोरेशन डेट है, तो वहां पे क्या होगा, 0। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, इन दोनों का डिफरेंस। ओके, इसके बाद हम लोग करेंगे वर्किंग 3, गुडविल छोड़ते हैं, डायरेक्ट हम लोग वर्किंग 5 पे चलते हैं, जो हमारा रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग पहले लेंगे रिटेन अर्निंग ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स का रिटेन अर्निंग क्या है, 450,000। ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व 100% आएगा पेरेंट के पास, क्योंकि सब कोई एनसीआई नहीं है, तो हम लोग ने जो ऊपर कैलकुलेट किया ये इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान क्या देना है, यहाँ पे पेरेंट सोल्ड कर रहा है सब्सिडरी को। ठीक है, पेरेंट सोल्ड कर, नहीं सॉरी, सब्सिडरी सोल्ड करी पेरेंट को, तो यहाँ पे हम लोग लेस करेंगे पर, ठीक है, और यहाँ से डिडक्ट करेंगे पर का अमाउंट। अगर पेरेंट को सोल्ड कर रही होती सब्सिडी को, उस केस में हम लोग वर्किंग 5 से डिडक्ट करते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 25% मार्कअप। मार्कअप किस पे लगता है, मार्जिन किस पे लगता है, लेट इट बी क्लियर फर्स्ट। मार्कअप हमारा आपका कॉस्ट पे लगता है, और मार्जिन आपका सेलिंग प्राइस पे लगता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। तो हमारा यहाँ पे सोल्ड जो किया हुआ है, दैट इज द सेलिंग प्राइस गिवन इन द क्वेश्चन 50,000। ठीक है, तो मार्कअप हमारा कॉस्ट पे लगता है। ठीक है, तो मार्कअप प्लस कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा, सपोज आपका, एक मिनट इसको क्लियर करने के लिए पहले यहाँ पे ये चीज आप नोट डाउन कर लो, कॉस्ट प्लस मार्कअप इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस माइनस मार्जिन इक्वल टू कॉस्ट। ठीक है, अब सपोज कॉस्ट आपका 100% है, मार्कअप अभी जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ 25%, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 125%। सिमिलरली मान लो आपका सेलिंग प्राइस 100 है और मार्जिन आपका 25% है, इस केस में 75 आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट 75%। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मार्कअप दिया हुआ है, इट मीन आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 125%। सो पर के लिए ये रहा, इंटू 50,000 डिवाइड बाई 125। ठीक है, इंटू करेंगे, कितना परसेंट चाहिए हम लोग को, हम लोग को सिर्फ प्रॉफिट वाला परसेंटेज चाहिए 25।
ऐसे करते हैं इसको इंटू 25 डिवाइड 125, इसको माइनस करना है। सो इसको डालने के बाद ओके 160,000 आ गया। सो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसको ऐड कर दो 560,000 ए आया पर, ठीक है, दिख गया ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मार्कअप और मार्जिन में बी फर्स्ट क्लियर, ठीक है। मार्कअप मार्जिन आपको इवन सेल्स टैक्स में भी यूज होगा ये चीज। सो मार्कअप आपका कॉस्ट लगता है, मार्जिन मार्जिन इज चार्ज ऑन द सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मार्कअप अगर मार्कअप जो है आपका कॉस्ट पे चार्ज करते हैं, तो कॉस्ट पे प्लस करने के बाद हमारा सेलिंग प्राइस आता है। तो सपोज हमारा कॉस्ट 100% है, तो मार्कअप 25% एज गिवन इन द क्वेश्चन, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 125%। अगर यह मार्कअप का मतलब मार्जिन दिया होता है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन किस पे चार्ज होता है, सेलिंग प्राइस पे। इट मीन सेलिंग प्राइस आपका 100% होगा और 100% में से हम लोग मार्जिन 25% माइनस कर दे, तो 75% वुड बी आवर कॉस्ट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है, मैंने वही किया। हम लोग को सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया था, तो सेलिंग प्राइस हम लोग लिया 50,000 इंटू हम लोग को 25% रिक्वायर है पर, मतलब वही अनरियलाइज प्रॉफिट। अगर आप आपने सारा का सारा गुड्स बाहर सोल्ड कर दिया होता तो उस केस में ये पर्प आता ही नहीं। बट क्वेश्चन में बोल रखा है इट इज स्टिल इन द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में स्टिल है। अब पेरेंट सब्सिडी के बीच में सोल्ड हो रहा है, वो गुड्स जब तक बाहर नहीं जाएगा तो प्रॉफिट रियलाइज नहीं होगा। बट अभी खुद के पास ही रखा हुआ इन्वेंट्री में, तो प्रॉफिट इज नॉट रियलाइज, इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने 25% हमको चाहिए डिवाइड बाई 125, बिकॉज सेलिंग प्राइस आपका 125% होता है, इसीलिए, ठीक है। तो यही था। ओके 26.10, व्हाट इज द गुडविल अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन ऑफ द माइन कंपनी। तो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप लोग, मैं चाहूंगी कि खुद से ट्राई करो सो दैट कि आपको भी पता चले कि आता है कि नहीं है कि नहीं। इतना मैंने एक्सप्लेन किया, so let's try it by yourself. If आपका confusion रहा so do comment me or if ask me in the comment box, I will help you out. Okay, so micro company acquired 90% of the 10,000 ordinary share capital of mini company for 30,000, ठीक है। It means on 1 January 20X9 when return earning of mine company were 156,000। तो पहले आप लोग क्या करोगे, ग्रुप स्ट्रक्चर बनाओ। ग्रुप स्ट्रक्चर में क्या दिखाओगे, माइक्रो कंपनी एक्वायर की है, वो भी 90% शेयर किसका, मिनी कंपनी का, ठीक है। तो माइक्रो कौन हुआ, पेरेंट, मिनी कंपनी कौन हुआ, सब्सिडरी। और कब एक्वायर किए, 1 जनवरी 20X9। और हमारा रिपोर्टिंग डेट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ है, लेट इट बी। उसके बाद आपको 90% अगर पेरेंट एक्वायर करिए तो इट मीन 10% एनसीआई एक्वायर करिए, ठीक है। और टीपीसी भी दिया हुआ है आपको, टीपीसी कितना दिया हुआ है, 300,000, ठीक है। तो जब आप गुडविल कैलकुलेट करोगे, फेयर वैल्यू ऑफ द पेड बाय पेरेंट्स 300,000 हो गया। अब फेयर वैल्यू पेड बाय एनसीआई, एनसीआई का फेयर वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, दैट इज 75,000। और लेस करेंगे हम लोग बस नेट एसेट एट एक्विजिशन, जो कि हमारा वर्किंग टू से आएगा। वर्किंग टू हम लोग कैलकुलेट करते वक्त शेयर कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है, ये रहा। रिटर्न अर्निंग का भी अमाउंट दिया हुआ है, जब वो एक्वायर किया हुआ है 156,000, और कुछ नहीं चाहिए। और आपको बोला हुआ एक चीज आपको यहाँ पे एडिशनल दिया हुआ है, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बाय मिनी कंपनी वाज 20,000 हायर देन इट्स कैरिंग अमाउंट। मींस 20,000 जो है ना आपका, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस है। तो जैसे हम लोग रिटर्न अर्निंग वगैरह डालते हैं ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोग जैसे वॉकिंग टू में यहाँ पे शेयर प्रीमियम रिटर्न अर्निंग है ना, तो यहाँ पे एक और रो डाल के रिवैल्यूएशन सरप्लस डाल देना और एक्विजिशन डेट में आप दिखा देना 20,000। अगर रिपोर्टिंग डेट में भी सेम जाएगा, बट रिपोर्टिंग डेट का हम लोग को यूज नहीं है गुडविल कैलकुलेशन के लिए, वी ओनली रिक्वायर्ड व्हाट, नेट एसेट एट एक्विजिशन गुडविल के लिए। तो इसलिए वो चीज भी ऐड कर देना 20,000, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके 11, what is the consolidated group profit for the Posum Group at 31st March 20X8? ओके सो आपका ये P&L का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो हम लोग को पूछ रखा है कि ग्रुप प्रॉफिट क्या है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन 1 April 20X7 पोसम कंपनी एक्वायर्ड 60% शेयर कैपिटल ऑफ कोला कंपनी फॉर 120,000। टीपीसी दिया हुआ है, टोटल परचेज कंसिडरेशन, और आपको डेट भी दिया हुआ है 1 अप्रैल, और ग्रुप स्ट्रक्चर जब बनाओगे 60% दिया हुआ है, एक्वायर किया है। इट मीन 40% एक्वायर बाय द
NCI. And during the year, Posum Company sold goods to Cola Company for 30,000, including a profit margin of 25%. 40% of these goods were still in the inventory at the year-end. Following are extracts were taken from the financial statement of Posum Company and Cola Company at 31st March 20x8. Okay. So बिफोर हम लोग कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाए, हम लोग को दो तीन चीज ध्यान देना है। एक मिड ईयर एक्विजिशन, दूसरा पर्प। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान देना है। तो मिड ईयर एक्विजिशन है क्या? ये नहीं, क्योंकि वो एक्वायर किया है 1 अप्रैल 20x7 को, और ईयर एंड कब है हमारा, वो दिया हुआ क्वेश्चन में 31st मार्च 20x8, मतलब 1 ईयर का है। सो नो इश्यू ऑफ द मिड ईयर। ठीक है। दूसरा, अब पर कैलकुलेशन ऑब्वियस, सोल्ड हुआ है गुड्स ऑब्वियस, पेरेंट सब्सिडी को सोल्ड करे या सब्सिडी पेरेंट को, आपको पीएनएल के लिए पर तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट आपको जब एसओएफपी बनाओगे ना, कंसोलिडेटेड एसओएफपी, उस केस में ध्यान देना है कौन किसको सोल्ड करा। बिकॉज अगर पेरेंट सब्सिडी को सोल्ड करा, इन दैट केस वी विल डिडक्ट फ्रॉम द वर्किंग 5। इस सब्सिडी पेरेंट को सोल्ड करा, इन दैट केस वी विल डिडक्ट इट फ्रॉम द वर्किंग 2। ओके ओके। तो लेट्स पहले हम लोग पर्प कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। सो पर्प कितना गुड सोल्ड किया, कौन किसको, पोसम कंपनी सोल्ड गुड्स टू कोला, मतलब पेरेंट ने सोल्ड किया सब्सिडी को फॉर द 30,000। ये आपका क्या है सेलिंग प्राइस है 30,000, और आपको मार्जिन दिया हुआ है। मार्जिन के केस में क्या बोला मैंने, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100%। ठीक है, 25 डिवाइड बाई 100 कर देंगे। और इसमें एक और चीज ऐड करना है, ये तो पूरा का पूरा गुड सोल्ड किया ना, पर इसमें से 40% ओनली रिमेनिंग इन्वेंट्री में, सो इसका 40% भी कर देंगे हम लोग। सो आपका हो जाएगा 300,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 100 एंड इंटू 40%, 3,000 आया पर। ठीक है। अब हम लोग रेवेन्यू करते हैं। रेवेन्यू लाइन बाय लाइन ऐड करेंगे। ठीक है। 750 1 2 3 प्लस 400,000। ठीक है। और माइनस करेंगे पर 300,000, और माइनस इंट्रा ग्रुप सेल, दैट इज द 30,000। जस्ट वेट गाइस। सॉरी, पर यहाँ से नहीं, नीचे से माइनस होगा, कॉस्ट ऑफ, बिल्कुल कंफ्यूज। ओके। तो 400,000 और माइनस करेंगे इंट्रा ग्रुप सेल, कितना था आपका 30,000। ठीक है। उसके बाद लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे लेंगे हम लोग इक्वल टू माइनस 420,000 प्लस 100,000। ठीक है। अब माइनस करेंगे पर यहाँ से 3,000। ठीक है। एंड सॉरी, माइनस नहीं, प्लस, पहले माइनस वो करते हैं इंट्रा ग्रुप से 300,000 देन प्लस 3,000। अब पर को यहाँ पे ऐड क्यों करें, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स डायरेक्टली वो कर रहे हैं, तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो ये हो जाएगा आपका 4390। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 627,000। डी आंसर है क्या? यस। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज। ओके, 26.12, which two of the following statement are correct? A company owns 25 of the ordinary share capital of B company, which means that B company is an associate of the A company. ऑब्वियस आपका लेस देन 55%, 50% से ऑन किया हुआ है, इतने से एसोसिएट है। ठीक है। C company can appoint 4 out of 6 director to the BOD of D company, which means C company is a control over D
कंपनी। ऑब्वियस, क्योंकि मोर देन 50% शेयर वो उसको कंट्रोल कर पा रहा है, अपॉइंट कर पा रहा है, रिमूव कर रहा है, जिनसे पूरा पूरा कंट्रोल है। इट मीन्स ये बी भी आपका करेक्ट है। सो ए एंड बी बोथ आर योर करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट, Ear company has power to govern the financial and operating policy of fee company, which means that fee company is associate of ear company. The power to govern ही है, power है उसके पास, obviously subsidiary होगा, associate नहीं होगा, ये wrong है। ठीक है, G company owns 90% of share capital of Hay company, but the agreement within the majority of shareholder has control over financial and operating policy of Hay company. So Hay company is an associate. अब 90% शेयर इवन तो ओन कर रहा है, बट अब उसके क्या बोलते हैं, बट बाय एग्रीमेंट विद मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर ही हैज कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी रही कंपनी। सो कुछ कुछ एक्सेप्शन है, लाइक इवन तो लेस देन 50% शेयर ओन करता है, बट अगर कंट्रोल है कंपनी पे, उसको रिमूव कर पा रहा है, पॉलिसी डिसीजन को चेंज कर पा रहा है, उस केस में वो सब्सिडी कहलाएगा, एसोसिएट नहीं। तो इसलिए ये रॉन्ग हुआ है। ठीक है, ओके, 26.13 13. Symington Company has owned 21% of ordinary share of Tangerine Company for several years. Symington Company does not have any investment in any other company and choose to account for investment at a cost. How should be the investment in Tangerine Company reflected in the financial statement of Symington Company? Okay. Symington 21% ऑर्डिनरी शेयर टैंगरिंग कंपनी का ऑन कर रहा है सिविल से, इट मीन ये एसोसिएट है। ठीक है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो चूज टू अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट एट ए कॉस्ट। मैंने क्या बोला था, इक्विटी अकाउंटिंग करने के लिए एसोसिएट के केस में देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन सब्सिडी सो दैट पेरेंट कैन प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। यहाँ पे तो कोई और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ नहीं है कंपनी का, तो ये इक्विटी मेथड यूज नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट क्या कहता है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ टैंगरिंग कंपनी आर एडेड टू रेवेन्यू एंड कॉस्ट एंड एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ लिमिटेड कंपनी ऑन लाइन बाय लाइन बेसिस। ऑब्वियस गलत है ये, हम लोग अगर ये सब्सिडी का रिलेशन होता है उस केस में करते हैं, ये तो सब्सिडी और पेरेंट का रिलेशन में होता है। An amount is shown in the financial portion of investment in associate being the original cost paid by the investment plus Symington Company shares the profit after tax of the Tangerine Co. 21% of profit after tax of Tangerine Company should be added to Symington Company profit before tax in the statement of profit or loss each year. अगर ये एसोसिएट तो है, बट उसके पास अगर एक भी सब्सिडी होता, इवन ही प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस फाइनेंशियल पोजीशन या कंसोलिडेटेड पीएनएल, उस केस में ये क्या होता है, ये चीज करता है, इक्विटी मेथड एडॉप्ट करता है। बट यहाँ पे उसके पास कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं है और सब्सिडी नहीं है, तो इक्विटी मेथड यूज नहीं करेगा, तो ये भी चीज के लिए एडॉप्ट नहीं होगा। ठीक है, इक्विटी मेथड करने के लिए देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन सब्सिडरी फॉर द पेरेंट्स सो दैट की पेरेंट्स कैन प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट यहाँ पे उसके पास कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके अलावा, तो ये चीज हम लोग फिट नहीं करेंगे। ये इक्विटी मेथड में होती है जहाँ पे पेरेंट के पास एक सब्सिडरी होती है। C number, amount is shown in the statement of financial position under investment being the original cost paid for the investment. This amount does not change dividend received from Tangerine Company and recognized in the statement of profit or loss of Limited Company. ऑब्वियस, अब इक्विटी मेथड यूज नहीं करेंगे तो इसको एज नॉर्मल इन्वेस्टमेंट ट्रेड करेंगे, जिसको हम लोग एज ए इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन में, और जो भी डिविडेंड मिलेगा उसको पीएल में दिखाएंगे। यही जो ऑप्शन सी कह रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। An amount shown in the statement of financial position under the investment being original cost paid for investment. This amount does not change. 21% of profit after tax of Tangerine Company should be added to Limited Company profit after tax in the statement of profit or loss. ये हाफ ऑफ मिक्स कर दिया है, जो हाफ पोर्शन जो दिया है 21% के बाद वो हम लोग इक्विटी मेथड में करते हैं, और हाफ पोर्शन जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, तो ये जाहिर सी बात है ये भी गलत है। ठीक है, so 26.14, which of the following statement relating to the parent company and subsidiary are correct? Okay, a parent company could consolidate a company in which it holds less than 50% of ordinary share capital in certain circumstances. So हाँ, आपका सर्टेन, मैंने अभी बोला ना, अगर लेस देन 50% ऑन करा, इवन तो कंट्रोल है, बीओडी को रिमूव कर पा रहा है, अपॉइंट कर पा रहा है, इन दैट केस इवन द पेरेंट एंड सब्सिडी रिलेशन विल बी एस्टैब्लिश। वो हम लोग को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया होगा सिनेरियो वगैरह, वो चीज ध्यान देना पड़ेगा। तो ये ट्रू है आपका, इन सर्टेन सर्कमस्टेंस नहीं लिखा होता तो ये रॉन्ग होता। So 2, a goodwill on consolidation will appear as an item in the parent company individual statement of financial position. वो individual statement में नहीं आता है, वो consolidated में आता है। ठीक है, ये wrong है। So consolidated financial statement ignore the legal form of relationship between the parent and subsidiary and present the result and position of the group as it is single.
इक्विटी। ऑब्वियस ये चीज सही है। हम लोग सब्सटेंस ओवर फॉर्म के अकॉर्डिंग कंसोलिडेशन में आते हैं, जिसमें लीगली कंपनी को ऑन नहीं करते हैं, इकोनॉमिकली हम लोग देखते हैं कंसोलिडेटेड में आते हैं। यही ये लाइन बोल रहा है। तो 1 and 3 इज करेक्ट आंसर, तो बी इज योर राइट आंसर। 26.14 का बी। ओके ओके ओके। P company, parent company of group owns shares in the other company. P company holding are okay. Which of the following are subsidiary of P company? Giving share giving control of 60% of voting right to Q company. Obvious आपका Q कंपनी में वोटिंग राइट 60 मोर देन 50% शेयर एक्वायर किए हुए हो, तो आपका वो सब्सिडी होगा। आर वाला क्या है? शेयर गिविंग कंट्रोल 20% वोटिंग राइट। P company also has a right to appoint or remove all the right of R company। मैंने अभी अभी लाइन बोला, इवन तो आप लेस देन 50% शेयर ओन किया, लेकिन आपके पास इतना पावर है कि बीओडी को रिमूव कर पा रहे हैं, अपॉइंट कर पा रहे हो। ये आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा इसके लिए। तो ये आपका सब्सिडी और पेरेंट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेगा, इसलिए ध्यान देना। 20% देखते ही ये मत सोचना कि एसोसिएट है, बस आपको और भी इंफॉर्मेशन दिया होगा जहां आपको लगेगा कि ये बीओडी को रिमूव कर रहा है या फिर अपॉइंट कर रहा है, इसके पास इतना पावर है। ये चीज ध्यान देना होगा। ओनली उसके बाद डिसाइड करना कि ये एसोसिएट है कि सब्सिडी है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सब्सिडी हो जाएगा। तो क्यू एन आर एस क्या है आपका? शेयर गिविंग a control of 10% वोटिंग राइट इन एस कंपनी पर प्लस 90% ऑफ नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब 90% नॉन वोटिंग है, नॉन वोटिंग, हम लोग को वोटिंग वाला चाहिए, तो ये हमारा सब्सिडी नहीं कहलाएगा। तो क्यू एंड आर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 26.15 का क्या है? डी है। ठीक है, ओके सी क्यू एन आर, ओके फाइन। 26.16 which of the following should be accounted for the consolidated financial statement of a company A using equity accounting? ओके, इक्विटी अकाउंटिंग किस में होता है? एसोसिएटेड केस में, और एसोसिएटेड के लिए देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन सब्सिडरी फॉर द पेरेंट, है कि नहीं? एन इन्वेस्टमेंट इन 51% ऑफ द शेयर ऑफ द ब्लू को 51% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर करा, तो इतनी क्या हो जाएगा? सब्सिडरी। सब्सिडरी केस में इक्विटी अकाउंटिंग नहीं होता है, रॉन्ग। इन्वेस्टमेंट इन 20% प्रेफरेंस नॉन वोटिंग शेयर्स ऑफ एक्स को, प्रेफरेंस शेयर बोला, नॉन वोटिंग, तो ये भी नहीं होगा। इस केस में भी हम लोग को ऑर्डिनरी शेयर देखना है। तो इन्वेस्टमेंट इन 33% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर ऑफ वाई को, तो 33% मतलब लेस देन 50%, ऑब्वियसली इसमें क्या हो जाएगा? एसोसिएट का रिलेशनशिप चालू होगा, क्योंकि इक्विटी अकाउंटिंग यूज करेंगे। तो ऑप्शन 3 हो रहा है। 4, an investment in 20% of ordinary shares of Z company, an agreement with other shareholder to appoint the majority of the director to the board of Z को। अब वो बीओडी को अपॉइंट कर पा रहा है ना, बोर्ड पे, सो डायरेक्टर को अपॉइंट कर पा रहा है बीओडी में, सो ये 4 वाला आपका सब्सिडरी कहला जाएगा। सो 3 ओनली होगा, इट मीन सी ऑप्शन। 26 का 16 का सी। ठीक है, 17, Baker Spear Company purchased 600,000 of voting equity share of Fleet Company when the value of the non-controlling interest in the Fleet Company is 150,000. Following information of the Fleet at acquisition date, goodwill arising on the cost of acquisition, what is the consideration paid by the Baker Company for the investment in the Fleet Company? तो ये बेसिकली ऊपर के जैसा क्वेश्चन है जो हम लोग ने इस टाइम टीपीसी कैलकुलेट किया हुआ था गुडविल से, उस टाइप का ही क्वेश्चन है। तो आप लोग एक बार ट्राई करो, अगर नहीं बनेगा तो डू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, इसके लिए कोई मतलब टेंशन नहीं है, बट आप फर्स्ट ट्राई करो, नहीं बनेगा तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, सो 18 नंबर, कितना सारा क्वेश्चन है, दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा क्या? ओ माय गॉड, इट्स वेरी, क्वेश्चन अभी बहुत है। सो वेयर वाज वी? 18 में है ना, 18 से लेके 26 तक है, आई थिंक 27 तक। सो इतना ही करते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में वी विल डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ओके,
सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज वन रिक्वेस्ट, आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना। ओके, एंड अगेंस्ट नेपालीहरूको लागि संविधान दिवस को हार्दिक शुभकामना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई व्यूअर इज फ्रॉम नेपाल, तो उनके लिए ये मेरे तरफ से बेस्ट विशेस। ओके, so thank you guys for watching my videos, and please like and subscribe to my channel. Bye bye, take care.